लग के रखूं क्या? हाँ, लग के रखो। है चार्जिंग है सर। See, all agreements or contracts, consideration and object of every agreement should be lawful. Lawful consideration and lawful object is an essential element of contract. All agreements or contract, if they are made up of free consent of competent parties for a lawful object and lawful consideration. तो ये एग्रीमेंट्स है ना सब. हाँ, अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन है तो फिर वो वैलिड होती है. नाउ कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट विल बी अनलॉफुल इन द फॉलोइंग केसेस. आवाज नहीं आ रही है अभी? अच्छा, ओके ओके, ठीक है. हाँ, now consideration if it is forbidden by law. See here, इसको क्या बोल रहे हैं लोग? If consideration is forbidden by law, then consideration or object is forbidden by law, then we say that consideration and object is unlawful. अगर कंसिडरेशन ऐसा है ना, सीयर द सवाल है कि व्हेन इज द कंसिडरेशन अनलॉफुल. इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन बाय लॉ मतलब नॉट परमिटेड बाय, अलाउड बाय लॉ. एग्जाम्पल, X promises to pay rupees 5 lakhs to Y if Y kills Z. हाँ, फॉरबिडन होता है तो फिर पनिशेबल भी होता है ना अगर करेंगे तो. Okay, that Rishabh will do later on, and last time also I had explained that. The question which you are asking now.
प्रोमिसेस ₹5 lakhs to Y, तो ये एकदम सिंपल एग्जांपल लिख दिया भाई। कानून अलाउ नहीं करता है और वो बात करते हो तो फिर इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो फिर वो अनलॉफुल हो जाएगा। सेकेंड, if it is of such a nature that if permitted it will defeat the provisions of any law. It is of such a nature that अगर if consideration is allowed, second ये first हो गया, second if consideration or object is such that if allowed or permitted it will defeat provisions of any other law. अगर अलाउ कर देना, जैसे एग्जांपल A has not paid property tax to government, बराबर, A's property is attached and is auctioned by government. ए ने जमीन का पैसा नहीं दिया है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया, तो ए की प्रॉपर्टी नीलाम कर रही है गवर्नमेंट। ओके, अटैच मतलब जब्त कर ली, टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट एंड ऑक्शन। नो, एज पर गवर्नमेंट, एज पर लॉ, ए कैनॉट टेक पार्ट इन ऑक्शन फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी। देखो, ए खुद ही खरीदेगा कि नहीं? A's property, A has not paid property tax to government. A's property is attached and is auctioned by government. As per law, A cannot take part in auction to buy the property. मतलब A नहीं आ सकता है प्रॉपर्टी लेने, क्योंकि A enters into an agreement with B. A ने एग्रीमेंट किया, B will purchase the property in auction and sell it to A. Now, if the agreement between A and B is taken as valid, तो क्या होगा? It will defeat the provision of law which says that A cannot take part in auction. अगर A और B की एग्रीमेंट मान लें तो उस कानून की धज्जियां उड़ जाएगी ना, किसकी? That A cannot participate in auction, ये तो खत्म हो जाएगा ना। If agreement between A is taken as valid, it will defeat the provision of the law which says that A cannot take part in auction. A auction में पार्ट नहीं ले सकता है, तो उसका क्या होगा? तो कंसिडरेशन को या हियर द द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट between A and B is unlawful as it will defeat the other law. Follow this?
आया समझ में? दो केस है। इफ इट इज फ्रॉडलेंट, मतलब फ्रॉड करने के लिए बना है एग्रीमेंट। A and B, if it is fraudulent, if fraudulent, तो क्या होगा बताओ? एग्जाम्पल, A and B enter into a contract to commit frauds and distribute gains. So such agreement cannot be enforced, no? नहीं कर सकते एनफोर्स, कैसे कर सकते बताओ ना। हाँ, उनका ऑब्जेक्टिव फ्रॉडलेंट है, तो ये समझा, ये शॉर्ट में लिखने का, इफ इट इज फ्रॉडलेंट it involves or implies injury to other, दूसरे के किसी के इंजरी करनी है। if consideration or object is to imply injury to other person or property of other person, मतलब किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे या किसी के राइट्स के इंजरी करेंगे। एग्जाम्पल देखो, किसी को भी हम ऐसे ए एंड बी enter into an agreement where A will provide A will make pirated copies and supply to B। तो ये क्या हुआ? A and B, ये समझा पहले, ये तीनों समझा पहले। फर्स्ट, इफ इट इज फॉरबिडन, कानून ना बोलता है, या फिर हम इसको अलाउ कर सकते हैं लेकिन दूसरे कानून उड़ जाएगा। फिर अगर उनका उद्देश्य ही, हाँ फोर्थ वाला समझा रहा हूँ, थर्ड वाले थी एक से तीन, हाँ एक से तीन समझा कि नहीं? हाँ एक से तीन में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो प्लीज। हाँ डोंट वरी। थर्ड नहीं समझा ना, देखो मैं अभी बोला तो फिर तुम लोग वो टाइम पे नहीं बोलते हो ना, वो प्रॉब्लम होता है। देखो क्या होता है थर्ड, अगर है ना इन सेकंड वाला समझा ना, फर्स्ट सेकंड नहीं समझा कोमल, अच्छा ना, सी थर्ड वाला पहले समझा तो। अगर इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, हम लोग का उद्देश्य ने एग्रीमेंट करने का चोरी करना है, जैसे ए एंड बी एंटर इनटू एग्रीमेंट टू कमिट फ्रॉड, हम फ्रॉड करेंगे। बंटी बबली पिक्चर देखी थी ना, बंटी बबली, उसमें उन लोगों का था ना कि हम लोग फ्रॉड ही करेंगे, हम सीधी तरह से काम ही नहीं करेंगे, हम लोग को सीधी तरह से पैसा मिलेगा, हम कमाएंगे नहीं, हम लोग वी विल कमिट फ्रॉड एंड फ्रॉड एंड फ्रॉड ओनली। सो दे एंटर इनटू एग्रीमेंट टू कमिट फ्रॉड एंड डिस्ट्रीब्यूट गेन, तो उनका उद्देश्य था। अब सपोज बंटी और बबली में या ए और बी में कुछ झगड़ा हो गया,
तो क्या एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है? नहीं, बिकॉज ऑब्जेक्ट वाज व्हाट? ऑब्जेक्ट वाज फ्रॉडुलेंट। मतलब कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स है जिनका उद्देश्य ही चोरी करना होता है। फॉलो दिस। के फिर ये इफ द कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ऐसा है that if allowed or permitted it will defeat the provisions of any other law। मतलब कि अगर हम अलाउ कर देंगे ना इसको, इफ यू अलाउ दिस, तो दूसरे के कानून की धज्जियां उड़ जाएगी। हाँ, इसको अलाउ कर देंगे तो। एग्जाम्पल, ए हैज नॉट पेड प्रॉपर्टी टैक्स टू गवर्नमेंट। ए's प्रॉपर्टी इज अटैच एन ऑक्शन। ए ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो गवर्नमेंट आगे बोले चलो तुम्हारी प्रॉपर्टी हम नीलाम करेंगे और टैक्स वसूल करेंगे। हाँ, सेकंड वाला। अब एज पर द लॉ ए कैन नॉट टेक पार्ट इन द ऑक्शन। अब जिसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो रही है, ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द ऑक्शन। वो ऑक्शन में पार्ट नहीं ले सकता। A enters into an agreement with B. B will purchase a property in auction and sell it to A. A B को बोलता है यार मेरी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, बचपन मेरा यहीं गिरा, हाँ अब मैं चाहता हूँ, मैं गलती कर दी, अब तू क्या कर, व्हाट यू डू, यू परचेस अ प्रॉपर्टी और यू गिव इट टू मी। अब ये ए और बीच के बीच में एग्रीमेंट है, ये वैलिड है कि इनवैलिड है? अगर उसको वैलिड मान लेंगे तो इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ अदर लॉ। दूसरे वो कानून है ना कि जिसकी प्रॉपर्टी वो भाग नहीं ले सकता है, वो प्रॉपर्टी वापस नहीं खरीद सकता है, which says that A cannot take part in the auction. The object of agreement between A and B is unlawful as it will defeat the provision of other law ना। दूसरे कानून को तोड़ने के लिए एग्रीमेंट बनाई है। तो इफ ये एग्रीमेंट बना लेंगे तो दूसरे कानून का प्रॉब्लम हो जाएगा। इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ अदर लॉ इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज सच दैट इफ अलाउड और परमिटेड it will defeat the provisions of any other law. Follow this? A and B enter into agreement to commit fraud and ये समझाए दोस्त? हाँ, अब फोर्थ पे आ जाओ। 1 2 3 एवरीबडी हैज फॉलोड ना। हाँ, मतलब क्या है कि देखो, एक तो क्या है कि कानून बोलता मत कर, अच्छा तुम लोग ऐसा कुछ करते हो दूसरा कानून टूट जाए, कानून को बाईपास करने के लिए कर रहे हो कुछ, तो वो भी नहीं चलेगा, वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं होती है। if the object or consideration is fraudulent, Bunty Bubbly, okay? If the consideration or object is to imply injury to a person or property of other person, मतलब हम लोग का consideration और object क्या है कि दूसरे का नुकसान हो। A and B enter into an agreement where A will make pirated copy of books, किसी के बुक्स है ना उसके कॉपी बनाएगा and supply to B. Now pirating or copying books of others is implying an injury to others, है कि नहीं? पायरेटेड मतलब कॉपी करके देने का, मैं पूरा जैसे सॉफ्टवेयर पायरेट करके दूंगा, पायरेटेड सॉफ्टवेयर आता है ना, कॉपी किया हुआ सॉफ्टवेयर, लीगल इलीगल सॉफ्टवेयर होता है कि नहीं? हाँ, तो पायरेटेड बुक्स भी आते हैं ना। हाँ,
समझे कि नहीं? फॉलो दिस। तो अगर ऑब्जेक्ट है कि दूसरे की वाट लगाना, तो चार चीज हो गई क्या? पहले पढ़ो क्या है। If it is forbidden by law, if it is of such a nature that if permitted it will defeat, it is fraudulent and it involves, implies, हाँ, if the court regard it as immoral or if the court regard as opposed to public policy, कोर्ट अभी समझो बाकी सब एग्रीमेंट ठीक है, लेकिन कोर्ट को लगता है कि एग्रीमेंट ठीक नहीं है, तो if the court think that it is opposed to public policy, हाँ, तो इफ पांचवा साहब एक ही पॉइंट है, इफ कोर्ट रिगार्ड एग्रीमेंट एज immoral or opposed to public policy, मतलब पब्लिक के ठीक नहीं है। अदर मतलब थर्ड पार्टी। ओके, नाउ इफ द कोर्ट को लगता है कि एग्रीमेंट इज इमोरल, अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल तुम लोग को दिए गए हैं इमोरल के टेक्स्ट बुक में, जैसे ये मतलब कोर्ट को लगता है कि पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है, हाँ, जैसे कोर्ट को ऐसा लगता है कि एग्रीमेंट टू गिव टाइटल्स, मैं आपको भारत रत्न दूंगा, पद्म भूषण दूंगा 1 लाख में, या फिर एग्रीमेंट सेलिंग गिविंग अप पेरेंटल राइट्स, मतलब एक आदमी ने अपने पेरेंटल राइट्स बेच दी कि मेरे बच्चे तेरे, मैं कभी अपने बच्चे बेच दिए, तो ये सब एग्रीमेंट इनवैलिड है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इट इज व्हाट, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल भी हो सकती है। तो इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इसमें 10-12 एग्जांपल, 7-8 एग्जांपल दिए तुम लोग को बुक्स में कि कौन से पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। तो इसमें इन सब केसेस में क्या होता है, कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर कंसिडर्ड एज व्हाट, agreement is considered as illegal, consideration is considered as unlawful। नहीं, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ होगा ना, तो फिर अगर ऐसा कोएर्शन होगा कि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो इट विल बी कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। वो कंसेंट के लिए है, हाँ, कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह इलीगल नहीं उसमें, कंसेंट, मैं मारूंगा जमीन दे दे, तो जमीन लेना और पैसा देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इलीगल नहीं है, लेकिन कोएर्शन करना इलीगल है। नहीं, कोएर्शन इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 23, रॉन्ग है। कोएर्शन इज कनेक्टेड विद कंसेंट, हाँ,
कोएर्शन का कनेक्शन कंसेंट से है, तो ट्रांजेक्शन तो इलीगल नहीं होता है ना इसमें। अच्छा, इसमें 5-6 एग्जांपल लिख देना तुम लोग। हाँ, नो एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। अच्छा, अब है ना, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, agreement in restraint of trade is invalid. State the exception to this rule. Very important question. अब इसमें क्या है, every agreement which restricts the which puts restraint on right of a person to carry on trade is void. मीन्स अगर एग्रीमेंट से दूसरे को बिजनेस करने के राइट्स पे रोक लगाते हो तो वॉइड है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। जैसे X pays ₹1 lakh to Y and Y promises not to carry on business anywhere throughout his life, तो Y ने एग्री किया कि मैं जिंदगी भर बिजनेस नहीं करूंगा, तो सच एग्रीमेंट puts restriction on, अभी आ रहे हैं ना पहले रेस्ट्रिक्शन, राइट ऑफ Y to carry on, okay, the agreement is void. Follow this? तो कोई भी पहले पहले रूल तो पढ़ो, पहले एक्सेप्शन नहीं कि मोनोपोली होता होगा कि नहीं होता होगा, जरूरी नहीं कि दूसरे कंपटीटर भी हो सकते हैं ना। हम लोग एक्स को पैसा देते हैं कि भाई तू कभी भी धंधा नहीं करेगा किधर, तो तुम लोग किसी का पैसा देके बिजनेस का करने का राइट रोक नहीं सकते हो। ये कौन सा सेक्शन है? हाँ, 27 ना। 27 में एक्सेप्शन है। नो एक्सेप्शन से पहले लीगल एक्सेप्शन, मतलब 3 लीगल एक्सेप्शन है। हाँ, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 19G, पर अभी उसका कोई जरूरत नहीं बोलने का। ये बिजनेस करना तुम्हारा हक है और तुम लोग उसको बेच नहीं सकते हो। देयर आर 3 टेरिटरी एक्सेप्शंस। ये भी ले ले, तो बोला भारत के किलो लेकर वो नहीं माचे कुछ नहीं। हाँ, देन फिर लीगल एक्सेप्शन से और फिर लीगल डिसीजन से। हाँ लिखो, ये लिखो पूरा, इसमें क्या आराम से लिखो।
हाँ सेक्शन, आई एम कमिंग टू दैट सेक्शन, ओके डोंट वरी. हाँ एक्सेप्शंस है अभी इसमें. सेल ऑफ गुडविल, एक्सेप्शंस अंडर पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुडविल बाय द फर्म. अब है ना, ये तुम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन यहां तक. हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी, the agreement in restraint of trade is valid. Sale of goodwill, seller of goodwill can be restrained. Who will be restrained from carry on business? मतलब in similar business within specified limit, so long as the buyer or the successor in interest carry on similar business, and restraint should be, but restraint should be reasonable. See here, X is running a hotel in a town. He sells, होटल नहीं बेचा, गुडविल, that is name of his hotel to Mr. Z, Mr. Y. उसने ना होटल का गुडविल बेच दिया, मतलब मेरा नाम तो यूज करेगा अभी. ओके सपोज उसका नाम है सदाबहार होटल. तो अब एक्स ने बोला कि सदाबहार नाम तू ले ले ले, तो वाई ने उसको पैसा दिया. ओके पेइंग मनी. ओके नाउ हियर वाई may impose restriction on Mr. X to do business. Okay, Y may restrict X to do similar business. तू होटल नहीं चलाएगा in same locality. Okay, so long as Y or his Y may put a restriction on X to do similar business in the same locality, so long as Y or his successor is doing business. है कि नहीं? जब तक मैं और मेरे आदमी कर रहे हैं तो ये ना. Now such restraint on whom seller of goodwill is permitted. Okay, however, restriction should be reasonable. Follow this. मतलब रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं. अब पहले हमने बोला नो नो रेस्ट्रिक्शंस, फिर बोला कि अगर बराबर है ना गुडविल बेचता है, मैं आपको गुडविल बेचूंगा 1 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, मैं बोलूंगा मेरा नाम यूज कर, सदाबहार होटल कर, मैं दूसरा चालू कर दूंगा, दूसरा होटल सेम चालू कर दूंगा, सेम लोकेलिटी में दूसरे नाम से चालू कर दो, समझो. तो भी क्या लोग तो फिर आ जाएंगे ना, बोलेंगे अरे ये तो होटल वाला इधर ही है कि नहीं?
सक्सेस वाला लाइन. हाँ, such a restriction, why may put restriction on x in a so long as, कब तक restriction, जब तक y या उसके वारिसदार, उसका बेटा इज डूइंग बिजनेस, है ना. वो बोलेगा जब तक मैं और हम लोग हमारी फैमिली वाले बिजनेस कर रहे हैं इसमें, तो तू इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा ये वाला, क्योंकि तूने हमको नाम बेचा है कि नहीं. अरे एक्स मर जाएगा तो फिर वाई तो बिजनेस कर ही रहा है ना यार. वाई मरेगा तो हाँ चलिए एक्स डाइस ओके चलेगा बराबर. एक मिनट. हाँ इफ वाई डाइज नो, तो फिर वो नहीं कर, जब तक ये रहेगा तब तक नहीं करेंगे ना. एक्सेप्शन इम्पोज ए पार्टनरशिप एक्ट, restriction on the firm, a partnership agreement may restrain the partner from carrying similar business. ये है ना, इसके रेस्ट्रिक्शन कैसे हैं. पहले एक रेस्ट्रिक्शन है, फर्स्ट सी, रेस्ट्रिक्शन अंडर पार्टनरशिप एक्ट. फर्स्ट है ना, firm is continuing, partners may impose a restriction on each other for not carrying on as to not means each partner imposes a restriction on other partner. Okay, so such restriction is valid. समझा. जब फर्म चल रही है ना, जब फर्म रेस्ट्रिक्शन बाय द फर्म, देखो ये पहले समझ में आया. सदर ऑफ गुडविल अभी एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट में रिस्ट्रेन पार्टनर्स फ्रॉम कैरिंग ऑन सिमिलर बिजनेस और एनी बिजनेस, है ना. सच रेस्ट्रिक्शन of partner are valid. 11(2), section 11(2). Okay, restriction on retiring partner, an outgoing partner is free to do any business after leaving the firm. However, in some cases the outgoing partner may agree with the firm not carrying on similar business. Such restriction on the outgoing partner is valid. तो ये सेकंड पॉइंट है. ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है और ये रिटायरिंग पार्टनर का है. एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना फर्म, तो सी फर्स्ट रूल क्या है. हाँ ये लिख दो, ये तो सेम ही लिखा है, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. चलो ये लिख दो फर्स्ट वाला, है ना. सेकंड वाला तो सेम यहीं से है. हाँ ये तो सब सेम ही है, सब कुछ ज्यादा सेम सिंपल लैंग्वेज ही है.
ये समझा? नहीं, यहाँ पे डॉर्मेंट वगैरह कुछ टाइप ऑफ पार्टनर नहीं लिखा है। एक आउटगोइंग पार्टनर है ना, हाँ उस पर भी डाल सकते रेस्ट्रिक्शन। देखो पहले तो क्या बोला है, इफ अ पार्टनर इज गोइंग आउट, सपोज 3 पार्टनर एक छोड़ के जा रहा है, तो एक्चुअली कोई रूल नहीं है कि वो बिजनेस नहीं करेगा। ही कैन डू एनी बिजनेस इंक्लूडिंग कंपीटिंग बिजनेस। लेकिन अगर वो, और हाउएवर इन सम केसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर लिविंग अ फर्म, then you are free to do anything. However, in some cases, the outgoing partners may agree with the firm for not carrying on business. वो खुद एग्री करता है फर्म के साथ, समझा? वो खुद बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं कैरी ऑन करूंगा। अब क्यों एग्री करता है वो जाने। सच रेस्ट्रिक्शन ऑन आउटगोइंग पार्टनर इज वैलिड। अगर रेस्ट्रिक्शन आ गया तो वैलिड है। ऐसे रेस्ट्रिक्शन है नहीं, बट एक एग्रीमेंट से रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। However, restriction agreed upon between outgoing partner and firm should be reasonable. ये समझा? 4 सेंटेंस है। A firm partner is free to do, outgoing partner is free to do anything, but if he agrees, he agrees with the firm for not carrying on business, तो क्या होगा? Then such restriction is binding and valid. Okay, but the restriction should be reasonable. आया समझ में? ये सेक्शन 36(2). ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, फॉर्म चल रही थी और ये जा रहा है अभी डिसोल्यूशन के टाइम। When the firm is dissolved or is about to be dissolved, partners may agree that some partners or all of partners will not carry on similar business to that of the firm. If a partnership is dissolved, then partners may agree that nobody will carry on the same business. ऐसा जरूरी नहीं है, they are free. Usually they are free to do anything after retirement, after dissolution. But if they agree, because if the firm is dissolved and the partners may agree, ये keyword है ना, that some, that होना चाहिए, then नहीं, some partners or all of them will not carry on business similar to that of the firm within specified period or locality. Such restriction is valid. तो ये 3 है, एक तो चलते समय रोको, निकलते समय रोको और डिसोल्यूशन के समय रोको, और चौथा है सेल ऑफ गुडविल बाय फर्म। अब हु इज सेलिंग फर्म, हु इज सेलिंग गुडविल? गुडविल is sold by firm. The buyer of goodwill may impose restriction on not only firm but also on all partners. When a firm is sold, the firm has sold the goodwill of the firm. Partners may make an agreement that such partners will not carry on any business similar to that of the firm. So partners may agree okay. Such restriction on partners is valid provided restriction is reasonable. तो 5 चीजें होती है। एक सेल ऑफ गुडविल होता है सेक्शन 27। फिर ये पार्टनरशिप एक्ट में रूल्स है कि भाई क्या चल रहा है तभी, रिटायरिंग हो रहा है तभी, डिसॉल्व हो रहा है तभी, और फर्म इज सेलिंग गुडविल
रेस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड ऑन पार्टनर्स। आया समझ में? Firm is selling goodwill and restrictions are on फॉर्म में गुडविल बेचो, रिस्ट्रिक्शन किस पे लगा? पार्टनर्स पे। आया समझ में? फॉर्म मीन्स ऑल पार्टनर्स। फर्म इज फर्म, ऑल पार्टनर्स नहीं लिखते हम लोग, फर्म ही बोलते हैं उसको। ओके। लीगल डिसीजंस, ट्रेड कॉम्बिनेशंस, ट्रेड कॉम्बिनेशन फिक्स है ना, फिक्स करेंगे प्राइस ना से an association of decorators may fix price for giving chairs on rent। देखो डेकोरेटर की एसोसिएशन है ना, अगर उसने प्राइस फिक्स किया क्या कि इस भाव में ही चेयर देने का, रेंट पे, भाड़े पे देखे थे ना, रेंट पे देते हैं ना वो लोग कुर्सी, फॉर गिविंग चेयर्स और रेंट है ना, सच प्राइस फिक्सेशन orders are valid। okay, आया समझ में? नेगेटिव स्टिपुलेशन, नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉय नॉट डूइंग वर्क एट एनी अदर प्लेस इज वैलिड है ना। क्या एम्प्लॉय शुड नॉट वर्क एट अदर प्लेस while he is serving at a place, so such restriction by employer is valid। okay, follow this, but it should be reasonable। क्या? अच्छा, फिर ये दूसरा और भी है, नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइज नॉट टू डू एनी अदर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वैलिड। वे तू काम इधर काम करता तो दूसरी जगह काम नहीं करने का, तो हाँ, restriction on employment imposed by employer on employee after employee leaves the job, मतलब जॉब छोड़ दिया फिर भी एम्प्लॉयर ने रेस्ट्रिक्शन डाला है that
आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय विल नॉट वर्क। अच्छा, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ restriction is to protect trade secrets, तो क्या होगा? restriction is valid if the object is other things, ऐसे ही उसको बोल रहा नहीं तो restriction is not valid। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, वो क्या होता है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। अगर खाली ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट करने के लिए तो वैलिड है। Sole selling agreements, an agreement that the buyer will not buy from anyone else is valid provided the restriction is reasonable। सोल सेलिंग एजेंट होता है ना कि तू और किससे नहीं खरीदेगा, जैसे मोन्जिनीस केक शॉप नो buy goods from इससे बाय करते लोग है ना। मोन्जिनीस केक शॉप बायज गुड्स फ्रॉम मोन्जिनीस प्राइवेट लिमिटेड। ओके, the shopkeeper cannot buy cakes from other cake manufacturer, so such restriction is valid। सोल सेलिंग एग्रीमेंट्स होती है ना कि तू हमारा माल ही बेचेगा और किसी का माल नहीं बेचेगा, तो एग्रीमेंट वैलिड होती है। फॉलो दिस। हाँ, तो ये सब लीगल डिसीजन है। ये 4-5 इसमें होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, हाँ हाँ, लिख लो हाँ सब। हो गया लिख के?
फॉलो दिस। तो सोल सेलिंग एजेंट, एम्प्लॉयज में रेस्ट्रिक्शंस, फिर ट्रेड कॉम्बिनेशंस है ना, याद रखने का। ये 3 जुडिशियल डिसीजन है, बुक में तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, तो अगर किसी को बिजनेस पे रोक नहीं सकते हैं, फिर गुडविल वाले में रोक सकते हैं, पहला वाला किया हमने, वेरी लेंदी। लीगल डिसीजंस, सॉरी ये लीगल प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 28, 3 types of agreements which restrain parties to contract to take recourse to agreement in which jurisdiction of courts, agreement in which jurisdiction of court is not allowed in trying a legal dispute। हम लोग बोलते हैं कि ना, सपोज किसी को हम बोलते हैं कि केस, हम एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे, हम कुछ भी करेंगे लेकिन वी विल नॉट फाइल केस अगेंस्ट ईच अदर, सो दैट इज इनवैलिड। एग्रीमेंट इन विच jurisdiction of court is not allowed in trying the legal dispute, मतलब हाँ, मतलब courts are not allowed, say X and Y agree that we will, in case of dispute between them, they will never go to any court. Now this restriction of not going to court is invalid. Agreement in which the jurisdiction of court is not allowed, मतलब कोर्ट को नहीं आने देंगे बीच में, कोर्ट की कोई अधिकार नहीं है। jurisdiction मतलब एग्जाम्पल लिखो, ओके। एग्रीमेंट which curtails the period of limitation and prescribed a shorter period than prescribed by law, मतलब agreement which curtail the period of limitation, ये समझा? ये समझा कि नहीं? अच्छा, इसमें आगे भी है, इसके आगे भी लिखो, चलो उसमें ना, ओके। एन एग्रीमेंट to refer dispute to arbitration is not invalid, मतलब हम लोग इसको देंगे क्या, referred dispute to arbitration, मतलब हम लोग है ना, एक arbitration मालूम है कि नहीं, that we will appoint umpire, हाँ, हम लोग एक कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन however agreement not to go to court if not satisfied by the order of traitor, such restriction is invalid. Now see here, अगर है ना, पहले बोलता हम we will not go to the court, not going to the court is invalid, telling that we will not go to the court. An agreement we will refer to arbitration is not invalid, मतलब valid है, okay. However, अगर हम ऐसा बोलते कि आर्बिट्रेटर से हम खुश नहीं है तो कोर्ट में नहीं जाने का, एग्रीमेंट नॉट टू द कोर्ट if not satisfied by the order of the arbiter, such restriction, कोर्ट में जाने के रोकने का सवाल ही नहीं आता है, ओके। An agreement to refer dispute
to a particular court, to a particular city or town is valid. अगर हमने बोला अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो जैसे वालों लिखता आता है, ऐसा लिखता आता है, सब्जेक्ट टू बॉम्बे ज्यूरिसडिक्शन, ऐसा लिखते हैं एग्रीमेंट. An agreement to refer the dispute to court. हम लोग सब्जेक्ट ऐसे लिखते हैं मालूम, सब्जेक्ट टू बॉम्बे मुंबई ज्यूरिसडिक्शन. मतलब हम लोग कुछ भी करेंगे तो बॉम्बे में केस करेंगे. केस लड़ने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किधर भी नहीं लड़ेंगे, बॉम्बे में ही लड़ेंगे. तो क्या होता है, वो वैलिड है, इज वैलिड रेस्ट्रिक्शन. फॉलो दिस. जैसे आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे तो ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर से खुश नहीं तो कोर्ट में नहीं जाने का, वो गलत है. कोर्ट में हमेशा जा सकते हैं. ओके. An agreement to refer to the dispute to a particular court is also valid. An agreement not to appeal to a higher court against the order of lower court is valid, is not valid. Huh? An agreement not to appeal to the higher court against the order of lower court is not invalid, is not valid. Okay. हम हायर कोर्ट में नहीं जाएंगे अगर लोअर कोर्ट में हार गए. तो ये समझा, ये रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स है. Sometimes it is, हाँ वो चलेगा, वैलिड है ना. कोई भी कोर्ट, एक कोर्ट का भी लिखा है तो भी चलेगा. 10 कोर्ट का भी लिखा तो भी चलेगा. एक कम से कम एक का लिखो. ऐसा मत लिखो हम कोर्ट में जाएंगे नहीं. तुम बोलो हम यही कोर्ट में जाएंगे, हाँ तो चलेगा. बॉम्बे में जाएंगे, किधर कोर्ट तो सब एक ही होती है. ना ये पहले लिख लिया सब. ये लिखा सबने. हाँ ये एकदम शॉर्ट समरी हो जाती है ना. दे कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. हाँ मुंबई कोर्ट से ना हाई कोर्ट जा सकते हैं ना, हायर कोर्ट जा सकते हैं. ये समझा स्टोरी पूरा, रेस्ट्रिक्शंस की गेम. Agreement which curtail period of limitation or prescribe a shorter period. See, normally there is a time limit to file a case, है ना. Okay, that is called, the time limit is called period of limitation. For example, if a person
wants to take has and debtor is not paying, then the suit can be filed in 3 years. Normally there is a limit to file a time limit to file a case. The time limit is called period of limitation. क्या बोलते हैं उसको? For example, if a person has lent money to other and debtor is not paying, so then the suit can be filed in how many years? 3 years. हाँ, अब है ना, if X and Y agree that period of limitation for filing case is reduced, वो लोग बोलते हैं से 2 years, तो वो लोग बोलते हैं अगर देखो लॉ बोलते हैं कि केस फाइल करना है तो 3 साल के अंदर कर दो, एक टाइम लिमिट देते हैं वे उसके अंदर फाइल कर देने का, उसके बाद कोर्ट आपका नहीं सुनेगी. ओके, बट अगर ये लोग दोनों एग्री करते हैं कि हम केस करेंगे तो 2 साल के करेंगे, if X and Y agree that period of limitation for filing the case is reduced say to 2 years, such agreement is not valid. Agreement which curtails मतलब shortens the period of limitation and prescribes shorter period than prescribed by law. लॉ में 3 साल बोला है, हम 2 साल कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं चलता है भाई. समझा? तो एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स फॉर forfeiture, waiver, extinguishment of legal right itself, if no action commence within a period of stipulated by the agreement, ये सेम ही है. An agreement which provides for forfeiture, waiver, extinguishment of legal right itself, if no action is commenced within the period stipulated by agreement, मतलब कुछ एग्रीमेंट में पीरियड लिखा है कि लीगल राइट्स कैन बी एक्सरसाइज, वही सेम ही है, ऊपर वाला ये सेम ही है. लीगल राइट्स कैन बी एक्सरसाइज्ड within a short period. An agreement which provides that legal rights can be commenced only within the period written in agreement. तो वो सेम सच, हाँ ये सेम ही है. Such agreement restricts period of limitation. ओके, हाँ ये कंडीशंस आर वॉइड, ये सब कंडीशंस वॉइड होते हैं. होल एग्रीमेंट इज नॉट वॉइड. ओके, इन द अबाव केसेस सब में, फ्रीडम और ट्रेड वाले में भी, ओनली ये खाली रेस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस आर वॉइड, पूरा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होता है.
ये मैंने करा दिया तुम लोग को पहले। रेस्ट एग्रीमेंट इज वैलिड। ये वाला में भी ऐसे ही है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड में भी। हाँ ये समझा। ये agreement to refer present disputes to arbitration is valid. Agreement to refer past and future disputes arbitration के पास जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। Agreement not to challenge the order of arbitration is invalid. arbitration में जो आंसर मिला वो उसको चैलेंज नहीं करेंगे, वो इनवैलिड है। समझा ये? Agreement the meaning of which is uncertain. Agreement the meaning of which is not certain is void, but there are but where the meaning is capable of being made certain, अगर मीनिंग सर्टन कर सकते हैं, उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं तो फिर वैलिड है ना? जैसे if meaning of agreement is neither certain nor capable of being made certain, such agreement are void. तुम लोगों ने ऑयल का एग्जांपल दिया, मालूम है ना? हाँ, तो ये बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं कि उसकी मीनिंग ही सर्टन नहीं है और सर्टन बना भी नहीं सकते हैं। अगर सर्टन बना सकते हैं ना तो भी वैलिड होगा। हाँ, X agrees to sell oil, not specified which oil, तो क्या होगा? It is uncertain, तो void. Follow this? But if X is dealing in coconut oil and X agrees, X is dealing in coconut oil and X to sell oil, so it means coconut oil ना? कोकोनट ऑयल माना जाएगा, फिर उसको तो कोकोनट ऑयल ही है ना, तो वही बेचता है। इट इज एग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, तो एग्रीमेंट शुड बी सर्टन, अनसर्टन नहीं होना चाहिए, और अनसर्टन इट शुड बी specified.
तुम लोग स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, बिकॉज हाँ तुम लोग कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर देखो, प्रोफेसर कभी टाइप नहीं करते वो लोग पावर पॉइंट लेके आते हैं, सेम टू सेम वही रीड करके खत्म हो जाता है। तो वी ट्राई टू राइट, तो उसमें मिस्टेक हो जाती है। एंड ओके, agreement by way of wager. A wager is an agreement whereby money is payable by one person to another on the happening or non-happening of an uncertain event. शर्त लगाते हैं ना, हाँ कि ये होगा तो मैं दूंगा, वो होगा तो मैं दूंगा। तो it has been held that following transactions are not wagers. ये सब वेजर नहीं है। वेजर मतलब शर्त लगाना। वेजर इज इनवैलिड। Share market transaction in which clear intention to give and take delivery. Share market transactions are not wager. Game of skills, prize and competitions, where the games of skills, that is picture, puzzle, athletic competitions है ना, कि तुम लोग का क्रॉसवर्ड पजल्स ये सब आते हैं ना, तो वो राइट जाएगा तो पैसे मिलेंगे, वो सब शर्त लगाना थोड़ी होता है। हाँ ये नोट्स में दिया हुआ है, एकदम क्लियरली नहीं दिया हुआ है। हाँ ये ले लो, इसमें क्या है ना, a statutory provision exception, an agreement to contribute payment to the price of value of 500 or upwards to the winners of horse race is valid. This is statutory exception laid down under section 30. देखो क्या है ये ना, हॉर्स रेस का जो एग्रीमेंट है ना वो वेजर होता है। कौन सा घोड़ा जीतेगा तो वो तो वेजरिंग होता है कि नहीं। हाँ तो ये लोग ने क्या बोला है, पहले किस में अलाउड है, शेयर बाजार में अलाउड है। गेम ऑफ स्किल होगा, जैसे केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, तो हम क्या बोलेंगे, वेजर है क्या वो, कि तू एक शर्त लगाते अगर तू राइट बोलेगा तो पैसा मिलेगा। फॉलो दिस। ये स्किल के गेम्स है ना, तो भी वेजर नहीं होता है। फिर हॉर्स वेजर होता है, लेकिन 500 रुपए तक का होगा ना प्राइस होगा, वहां तक वेजर। वैल्यू ऑफ और अपवर्ड्स, एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट to the payment of a price of value of rupees 500 or upwards to the winners of horse race. Horse race not wager. Horse race is not a wager. 500 रुपये तो छोड़ो उसको, 500 या ज्यादा का प्राइस होगा। 500 का प्राइस होता ही नहीं है, उसमें भी लाखों का प्राइस होता है। दिस इज स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। ओके, तो ये तीन चीजें हम छोड़ देंगे, इनको शर्त नहीं माना जाएगा। An agreement by way of wager is void. पहले तो wager is void. It will not be enforced in the courts of law. In state of Maharashtra and Gujarat, wagering are by local statute not only void but illegal. बस ये तुम लोग याद रखना। wagering क्या होता है, शर्त। Wagering is an agreement by which money is payable by one person to another. अगर ये हुआ या ये नहीं हुआ तो पैसे दूंगा, बरसात आई तो पैसे दूंगा, बरसात नहीं आई तो पैसे दूंगा। ओके, तो कुछ भी शर्त लगाते हैं ना वो। पर शेयर बाजार इस वेजरिंग नहीं है, गेम ऑफ केबीसी वेजर नहीं है, और हॉर्स रेसिस वेजर नहीं है। राजस्थान में रोज है, पर शर्त लगा जाके उधर फिर। हाँ शर्त मत लगाना उधर। इफेक्ट ऑफ वेजरिंग, वहां पे वॉइड है, यहाँ पे वॉइड भी और इलीगल भी है। यहाँ पे in Maharashtra, state of Maharashtra and Gujarat, wagering agreements are by local statute not only void but also illegal. हाँ बहुत पुलिस खुद करती है, पता है, समझा कि नहीं, होता है ऐसा।
Lottery agreement. The Supreme Court in Anirudh versus Government of Tamil Nadu held that lotteries without prior permission of government are legal. With a prior permission are legal, conferring the winner the lottery. So lottery with permission is legal. Okay, but without permission it is void and wager. समझा? परमिशन लेके लॉटरी लेते हैं ना गवर्नमेंट की, वो वैलिड है, खुद की लॉटरी नहीं. फिर है ना स्पेकुलेट. देखो कौन सी वेजर अलाउड है. वेजर मतलब शर्त लगाना. तो कौन सा अलाउड है? Which one is allowed? Shares, lottery, games of skills. लॉटरी परमिशन होगा तो एक्सेप्शन हो. हॉर्स रेसेस, हाँ वो अलाउड है सब. अभी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होता है सुनो. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं मैं तो बता रहा हूँ. सुनो, दो पार्टी एग्रीमेंट करती है. सपोज है ना गोल्ड का भाव 50,000 चल रहा है पर तोला. तो वी एंटर इनटू ट्रांजैक्शन and I am telling you that I will sell you gold at, I will buy gold from you. Suppose मैं तुमसे buy करने वाला हूँ gold. I will buy gold from you at rupees 52,000 after 2 months. 2 महीने के बाद मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा कितने में? 52,000. Today the rate is 50,000. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ओके, वेरी गुड. नाउ 2 महीने बाद प्राइस हो गया 55,000. प्राइस है 55,000. नाउ दो द प्राइस इज 55,000, यू हैव टू गिव इट टू मी एट व्हाट रेट? 52 में देना पड़ेगा. तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई छोड़ 52 छोड़, देख भाव 55 का है और तुझे मुझे 52 में देना है, तो मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे 3,000 रुपये दे दे खाली. डिफरेंस. सो देयर इज म्यूचुअल, व्हेन mutual intention of the contracting parties to acquire or deliver as the case may be the commodities and the undertaking of risk of the movement of the price. Here speculation में क्या होता है? Mutual intention of the parties to acquire or deliver the as the case may be and the undertaking of risk from the movement of prices. A wager on the other end. देखो ये ना, ये स्पेकुलेशन क्या होता है? दो वेजरिंग आर वॉइड, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस आर वैलिड. पहले तो ये कि स्पेकुलेशन वैलिड है. इट इज हाउएवर डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन एंड वेजरिंग. दोनों में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है. अब ये ना, एक मिनट, ये दो थर्ड और फोर्थ पॉइंट कैंसिल करो. 2 एलिमेंट्स क्या होता है? फर्स्ट, parties intend to avoid delivery, ये होता है. intend to avoid giving and taking of delivery, ये लिख दो हाँ काट के. parties and second, settlement is made by paying the difference. लेकिन स्पेकुलेटिव और वेजरिंग में ना डिस्टिंग्विश करना रियल में बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज पार्टी का इंटेंशन क्या है देखने का. अभी इंटेंशन इज ऑलवेज इन द माइंड, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. एनीवे, इसमें खाली एक चीज नहीं है मेरे ख्याल से. कौन सी?
कौन सी चीज नहीं है बताओ? रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज नहीं है ना? अच्छा, ये रेस्टिट्यूशन सेक्शन 64 हमने किया है. इफ द पार्टी हैज रिसीव्ड बेनिफिट, एंड ये सबके लिए है, कोई भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इज बाउंड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, void agreement, voidable contract और void contract is bound to return it. इसको बोलते हैं, ये जनरल लॉ है कि आपको अगर which one you not, this you not understood, see here. देखो स्पेकुलेशन, पहले स्पेकुलेशन इज वैलिड और वेजरिंग इज इनवैलिड, बरोबर? अभी स्पेकुलेशन होता क्या है? It is very difficult to distinguish between speculation and wagering. A speculative transaction has two elements. Parties intend to avoid, पहले से मालूम होता है हम डिलीवरी लेंगे नहीं और देंगे नहीं. And settlement is made by paying the difference. What? Settlement is made by paying the difference. मतलब हम डिफरेंस देके हम लोग सेटल करेंगे. जैसे गोल्ड का भाव मैंने एग्जांपल दिया कि आई टोल्ड आई विल परचेज एट 52,000, 2 महीने बाद तूने बोला ठीक है देंगे, लेकिन हमारा डिलीवरी देने का कुछ उद्देश्य नहीं था. हाँ, फिर भाव 55 हो गया तो मैंने बोला 3,000 रुपये दे दे, है ना? अभी 55 की चीज तो 52 में देगा, उससे क्या झंझट मत कर, 3,000 दे दे. तो ये पार्टीज इंटेंड टू अवॉइड एंड डिलीवरी लेना नहीं चाहते हैं, और सेटलमेंट किससे करते हैं? डिफरेंस. नाउ इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेजरिंग एंड स्पेकुलेशन. निकालना बहुत मुश्किल होता है कि ये स्पेकुलेशन था, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन ऑफ पार्टीज ना. हाँ, अब इंटेंशन इज वेरी डिफिकल्ट टू, इंटेंशन क्या था वो हम कैसे बोल सकते हैं? अब ये 2 सेक्शन है बहुत छोटे छोटे. If a party has received anything under a where a person who at whose option contract is voidable rescinds it, other party thereto need not perform the promise therein contained in the in which is a promisor. The party rescinding the voidable contract shall, if received any benefit, देखो पहले बोल रहे हैं कि अगर voidable contract कैंसिल कर रहे हो तो दूसरी पार्टी को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, और जो पार्टी, द पार्टी विच इज कैंसिलिंग इट, ये पहले समझ गया स्पेकुलेशन. और ये तो मैं बिफोर दैट आई टर्न टू लास्ट पॉइंट. हाँ, ये लास्ट 2 पॉइंट है. व्हेन अ पर्सन एट, देखो पर्सन इज, इफ यू आर एंटर इनटू अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैंसिल इट, सपोज आई एम अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम कैंसिलिंग इट, नहीं चाहिए. द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म हिज प्रॉमिस देयरिन कंटेन्ड इन व्हिच ही इज अ प्रॉमिसर. तो दूसरे को प्रॉमिस फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूं. Or the party rescinding the voidable contract shall, if has received any benefit under from the any other party, such restore such benefit. मतलब दूसरी पार्टी क्या करनी चाहिए? जो पार्टी ने कैंसिल कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट, द पार्टी विच हैज कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट शुड, हाँ जैसे ना यू आर डूइंग कोएर्जन, और कोएर्जन करके मेरे को बोला है कि ये 10 रुपए की चीज 1 लाख में खरीद, तो फिर मैं अभी कैंसिल कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, तो आई एम कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट.
तो वॉट एवर बेनिफिट दैट फेलो हैज रिसीव्ड, किसने भी कुछ मिला है ना जिसको भी वापस देने का। हाँ जैसे बता रहा हूं, सुनो, उल्टा एग्जांपल लो। सी सपोज माय प्रॉपर्टी इज ऑफ 5 lakhs एंड यू वांट एट 2 lakhs। तो मेरे को तुम लोग ने जबरदस्ती साइन करवा लिया और मेरे को 1 लाख दे दिया। नाउ आई एम कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट। तो यू डिड नॉट पे 1 लाख मोर, 1 लाख और दोगे क्या तुम? 2 लाख दोगे क्या पूरा? नहीं ना। हाँ, द अदर पार्टी देयर टू नीड नॉट परफॉर्म द प्रॉमिस। हाँ, द पार्टी रेसिंडिंग द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे 1 लाख तुमको वापस देना पड़ेगा। हाँ, कुछ बेनिफिट मिला है तो वापस देने का। और ये सेक्शन 65 है, ये वॉइडेबल का था। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर अ वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर। अगर एग्रीमेंट वॉइड हो गई तो वापस जो मिला है वापस देने का, और टू मेक कंपनसेशन, रिस्टोर इट, और नहीं रिस्टोर कर सकते, टू मेक कंपनसेशन फॉर इट टू द पर्सन फ्रॉम होम इट इज रिसीव्ड। ये समझा? या तो रिस्टोर करो या उसके पैसे दो, नुकसान भर के दो। सेक्शन 64 एंड 65 ये कहीं भी काम में आएगा वॉइडेबल में लिखने के लिए। वॉइड और वॉइडेबल में सब चीजें रिटर्न करनी पड़ती है एक दूसरे को। आया समझ में? फॉलो दिस।